Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nimish Kumar. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23314444, 23717106, 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू, धन्यवाद आपका। और अब अंग्रेजी हेडलाइंस के साथ राजेश लेख। Finance Minister Nirmala Sitharaman says financial inclusion is a major step towards inclusive growth. Foreign funds pump in over 49,250 crore rupees in domestic equities so far in August. And country's diesel exports decline 11% in July, while petrol shipment drops 4.5%. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना बताती है कि सरकार विकास में हर वर्ग को शामिल कर रही है। विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में अब तक घरेलू बाजार में 49,250 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जुलाई महीने में देश में डीजल के निर्यात में 11% की कमी आई है, वहीं पेट्रोल का निर्यात भी 4.5% कम हुआ है। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said financial inclusion is a major step towards inclusive growth, which ensures the overall economic development of the marginalized sections of the society. The success of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana since August 28, 2014 is reflected in terms of opening of over 46 crore bank accounts with deposit balance of 1.74 lakh crore rupees, with its expanded coverage to 67% rural or semi-urban areas as well as to the 56% of women. The minister added, continuation of Jan Dhan Yojana beyond 2018 saw a marked shift in approach to meet challenges and requirements of the emerging financial inclusion landscape in the country. Stressing that financial inclusion is among the topmost priorities of the government, she said, it provides an avenue to the poor for bringing their savings into the normal financial system, an avenue to remit money to their families, besides taking them out of the clutches of the usurious money lenders. So, Dhiren, we start the program with mutual funds, and to our listeners, we just want to, on behalf of our listeners, we would like to know what is the best way for a person to start investments in the mutual fund? Mutual fund, most people should start. One is that, start as early as possible. Get used to it. It is more about what not to do than what to do. So whenever investing for the long run, always spread your investment. Start with a conservative vehicle, something like a balanced fund or a equity income fund, and keep it like that for 1 or 2 years. Mm-hmm. Because all said and done, anything which is linked to market, it's far easily said that I can withstand the volatility. I don't mind, I'm young, the risk tolerance. But when you see the big things in the market, it is not easy to reconcile with it. So, 2-3 things. One is that invest your long-term money.
start with a balanced fund or a equity income fund, and never do a lump sum start your SIP, and do it for 1 or 2 years, and during the course you will figure it out. जी, एक सवाल कई बार हमारे दर्शक हमसे, हमारे श्रोता हमसे पूछते हैं कि वो लेट हो गए। मतलब आपने जैसे अभी बताया कि जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो आज के समय में कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये जानकारी पूरी नहीं होती म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश किया जाए, और कई बार देरी हो जाती है। कुछ लोग 35 या 40 के बाद भी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो जिसे हम कह सकते हैं कि अब वो 40 के बाद करना चाह रहे हैं, 45 की एज में करना चाह रहे हैं, तो क्या इस वक्त भी किया जा सकता है? और ऐसे समय में स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या होनी चाहिए? नहीं, ये तो कहावत किया जाता है कि जब जागे तभी सवेरा, और दूसरा आपके सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो सकते हैं कि आप चाहते हुए भी आपकी शुरुआत नहीं हो पाई। और ये कहा जाता है कि एक और कहावत मुझे ध्यान आता है कि सबसे उचित समय पेड़ लगाने का 20 साल पहले था, और उससे अगला उचित समय अभी है। तो शुरुआत करें, और अगर जो हो गया तो हो गया, लेकिन यहाँ से भी अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप मुहूर्त निकालते रहेंगे, क्योंकि निवेश बड़ा मुश्किल काम है। निवेश जब आप कर रहे हैं तो आप भविष्य में अभी अपना एक आप खपत को, खर्च को आप रोक रहे हैं, और उसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं भविष्य के लिए। तो आज जिस तरह से हमारे पास सब कुछ खर्च करने का साधन है, बल्कि खर्च करने का साधन ही नहीं है, भविष्य की आमदनी को भी आप आज खर्च कर सकते हैं। तो इसमें लोगों के लिए निवेश कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर शुरुआती दौर में। और ये फाइनेंस का या बचत का या निवेश का ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि जब आप निवेश को अच्छी तरह से कारगर तरीके से काम करने के लिए उसको समय चाहिए होता है, और शुरुआती दौर में जब आप निवेश करेंगे तब आपके पास निवेश को समय मिलेगा। और शुरुआती दौर में आपके खर्चे अनेक होते हैं और आमदनी कम होती है, और जब आपकी आमदनी बढ़ जाती है तब और खर्चे कम होते हैं तब आपके पास समय कम रह जाता है। तो ये बैलेंस तो हर एक व्यक्ति को खुद ही स्ट्राइक करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मुझे लगता है बचत तो आदतन हम सब करते हैं, निवेश नहीं कर पाते हैं। तो धीरेन्द्र जी, बचत आखिर जब हम बात करते हैं, हम अपने श्रोताओं को क्या हम ये बता सकते हैं कि कितना कम, मतलब SIP हम कितनी कम पर, यदि जैसे कई बार लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक बड़ा, जब आपके पास बहुत लमसम अमाउंट होगा या आप सभी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप ये कर पाते हैं। तो क्या यदि जल्दी शुरुआत करनी है तो कितना छोटे निवेश से शुरुआत की जा सकती है? नहीं, छोटी से छोटी रकम 500 रुपए से शुरुआत हो सकती है। अगर आपके पास 500 रुपया भी नहीं है तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आप बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट में 250 रुपए का कीजिए, पोस्ट ऑफिस में कीजिए, क्योंकि बचत का आपके बैंक खाते से निकल जाना या आपके जेब से निकल जाना और कहीं और चले जाना जहां पर आप उसको आसानी से हाथ नहीं लगा पाएंगे, ये बड़ा जरूरी है। म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड या किसी बैलेंस फंड में पैसा लगाना और रिकरिंग डिपॉजिट में अंतर यह है कि यहाँ पे 6-7% आपको रिटर्न मिलेगा, वहां पे 10-12% उतार चढ़ाव के साथ आपको मिल पाएगा जी। और इस उतार चढ़ाव का भी आपको फायदा मिल पाएगा, क्योंकि आप गिरते बता चढ़ते बता हर समय आप लगा रहे होंगे। लेकिन बेहतर है कि आपका पैसा बढ़े, कहीं पे भी बढ़े, और एक बार और ये आदत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शुरुआती सालों में नहीं हुआ तो आप इसका मुहूर्त निकालते रहेंगे और फिर ये शुरुआत नहीं हो पाएगी। Dhiren, sometime back we talked about buckets, and we will talk about them as to how we invest in buckets, and we will do that after we have taken this caller online with us from Delhi. Vikas, we welcome you. Please ask your question. Yeah, good evening to everybody out there. I'm a very regular listener. So, I have two questions. One is related to mutual funds and one to insurance. I have been a regular investor into ELSS funds over the last 12-13 years, and I have reaped good benefits. I am doing SIP right now. So, is that the right way to do it, or sometimes one should also invest in a bulk mode also? One question is that, and second question would be, sir, that if somehow you are not able to continue the premium for any insurance policy for multiple years, does the insurance company give back that money to you that you have already invested after doing their own deductions, or the money is totally gone? Thank you so much for your time.
About the tax saving fund, after doing it for 12, 14 years, 15 years, you realize that what has been, the kind of benefit that you have derived. And 12, 15 years itself is good enough, where you would have earned something like, over 15, 16% annualized return, given the swings of the market and the kind of great rise that we have seen despite the upheavals. So carry on. But I think, for somebody like you, it is better to be methodical. But just in case you have some surplus money and you find that, if market is ever down 30% from its recent peak, that is the time when you should accelerate. But, I would not suggest any such strategy, because when you get that situation, when you are faced with that circumstances, it is all very gloomy and scary. Market is on a free fall. It is down 20-30% from its recent peak and looks like the world is coming to an end. And the moment you invest, the market goes down by another 4-5%. So it's not an easy thing to do. But just in case you have developed that understanding in the last 12-15 years that you have been investing, and if you are watching it closely, you know that there are situations when markets do go down. It happened recently, or it happened in the month of April or March 2020. Market suddenly went down by 20-30% and made a big comeback. But as I was saying, that investing in those times is not easy. It is very scary. So carry on substantially with your SIP. And if you have some money and you are faced with that situation, try your timing instinct, but not with substantial part of your money. And about the insurance policy for which you have not been paying the premium and what happens to that money, depends. Depends on what. Just take your policy document. Understand what it is. If it's a very old policy document, earlier there used to be a clause that in the initial 4-5 years, if you stop doing it, the insurance company will forfeit that. After that, IRDA made some changes, and that happened about 7-8 years back. After that, IRDA made some changes that the money that you have paid till whatever period will never be forfeited, even if you discontinue that, and it will be returned to you without any meaningful return after 4 or 5 years, very nominal return. So take your policy document, depends on what are the terms. And if it is a term insurance, it has gone, because term insurance is not an investment policy. You get the benefit. You are buying protection for your family. And if you have been paying premium, your family is covered. If you stop paying premium, after a point it expires. So, हमारे साथ अब चेन्नई से जुड़े हैं हमारे श्रोता काशीनाथ। काशीनाथ जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। सर, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। गुड इवनिंग। धीरेन्द्र सर को मेरा प्रश्न ये है कि सर मेरा पास 5 म्यूचुअल फंड 4 साल से करीब चल रहा है। और सर वो फंड का नाम है नंबर 1 जो यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है, नंबर 2 मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड है सर, नंबर 3 एचडीएफसी का मिड कैप फंड, नंबर 4 निप्पन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, और नंबर 5 यूएसए अपॉर्चुनिटी जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटेशन का। और इसी 4 साल और 10-12 साल की मेरा नजरिया है। मेरा सवाल ये है कि इसी फंड में बने रहूं ना इसी किसी में बदलाव करने का जरूरत है? आपकी सलाह थोड़ा चाहिए। धन्यवाद जी। ये फंड अच्छे हैं और इन सब की बदहाली हुई है, अधिकतर फंड की बदहाली हुई है पिछले 1-1.5 साल में। और इनमें से 2-3 फंड है जिनमें जो खास खराब लगते हैं, लेकिन जिस वजह से वो खराब लगते हैं, ये उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है, उसी वजह से उनका प्रदर्शन अभी बहुत अच्छा रहेगा और उसकी शुरुआत हो गई है। तो जिस अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें निश्चिंता से आपको कुछ सालों के लिए और अपना निवेश जारी रखना चाहिए। Joining us from Faridabad, we have Deepak with us. Deepak, we welcome you. Thank you, sir. Good evening, Dhiren sir. Good evening. Dhiren sir, मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरी एज हो गई है सर 47 ईयर्स, और मैंने म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया था 2002 ऑनवर्ड्स। तो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, और अब जाके मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा साइजेबल हो गया है। मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अब मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म डेट फंड में ट्रांसफर करके वहां से
बैलेंस फंड में एक SIP कर दूं या STP कर दूं, वो राइट स्ट्रेटेजी होगी जिससे कि मेरा एक कॉर्पस जो है वो अब मेरी एज को देखते हुए एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे? ये सही स्ट्रेटेजी होगी सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सर निर्भर करता है कि आपको अपने अधिकतर पैसे की जरूरत कब होगी, या कभी भी एक साथ आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने मकान खरीद लिया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है और उसके लिए अगर कोई बड़ा पैसा नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि ये पैसा आपके पास हमेशा रहे, ये आपके रिटायरमेंट का पैसा है। और अगर वो और कभी कभी पैसे की जरूरत होगी, आपको आमदनी के लिए की जरूरत होगी, और जब आप रिटायर करेंगी, अब मुझे पता नहीं है कि आपकी जरूरत किस तरह से आएगी, बड़े खर्चे की या नियमित आमदनी की। इसलिए आपको कुछ पैसा अपना फिक्स्ड इनकम में बदलना चाहिए। और ये मैं एसेट एलोकेशन का आपको नियम बताता हूँ, ऐसा कुछ मत कीजिए कि सारे पैसे को निकाल के शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाइए। रिटायरमेंट के बाद भी आपका अधिकतर पैसा इक्विटी में लगना चाहिए, और कम से कम आधा पैसा लगना चाहिए अगर आपके पास भारी रकम इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसी तरह से आप महंगाई से जूझ पाएंगे। और खासकर आपके जैसा व्यक्ति जो पिछले 20 साल में अपना 2002 से आपने शुरुआत की थी, तो आपको पता चल गया होगा कि ये फिक्स्ड इनकम से 2-2.5 गुना रिटर्न से ज्यादा मिल पाया है। ये समय के साथ ही मिल पाता है, कम समय में भले ही आपको नुकसान हो जाए। इसलिए, और ये जो घबराहट होती है जब बाजार अचानक डूबता है, और खासकर जब आपकी पूंजी ज्यादा इकट्ठा हो गई है, तो ज्यादा घबराहट होती है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको अपना आकलन करना चाहिए। 20% पैसे को फिक्स्ड इनकम में लगा दीजिए शुरुआत में, 10% धीरे धीरे मूव कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए, मोटे तौर पे आमतौर पे ऐसा करना चाहिए कि आपका रिटायरमेंट में आधा पैसा अगर इक्विटी में रहेगा और आधा फिक्स्ड इनकम में रहेगा, तो अभी आपको 10% सालाना बढ़ा करके 1/3 पैसा या 30% अपना फिक्स्ड इनकम में कर दीजिए अगले 2-3 साल में ग्रेजुअली। और ये ऐसे भी किया जा सकता है कि आप जो नया पैसा लगा रहे हैं वो फिक्स्ड इनकम में लगाइए, ताकि आपको अभी कैपिटल गेन्स टैक्स, क्योंकि एक पैसा बहुत ज्यादा इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी करने का एक नुकसान ये है कि अब कैपिटल गेन्स टैक्स लगने लग गया है। और जब भी कैपिटल गेन और जो भी आपका मुनाफा है, वो मुनाफा 10% घट जाता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तब भी। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करने के बजाय अपने एसेट एलोकेशन को रियलाइन कर लीजिए, नए पैसे से कम ट्रांजैक्शन कीजिए, और इस तरह का नी जर्क डिसीजन ना लें कि इक्विटी से पूरा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाना है, या तो और ऐसा जरूर लें जब आपको इस पैसे की जरूरत होगी। अगर आपको 1-1.5 साल 2 साल के बाद इस पैसे की जरूरत है, तो जरूर उतना पैसा आपको फिक्स्ड इनकम में ग्रेजुअली निकाल लेना चाहिए। So what you are saying is that for our retirement plans, we should have 20% at least keep it in the fixed deposits, and the rest of it should be in equity. Is that what you are recommending? No, I'm recommending this for him because he is still 47. He is still working. He will still be away from his retirement. He is 47 years old. Okay. So when you retire, I think it is entirely a matter of scale. If you are going to if you are barely able to accumulate enough that 6% of that money is going to be is needed to support your income requirement, then you need to be 75% into fixed income and 25 or 20% into equity. Okay. If you have substantial money, it is entirely dependent. The whole planning or asset allocation is a function of what is the scale of your investment and what is likely to be your income requirement. हमारे साथ जो श्रोता अभी जुड़ रहे हैं, हम उन्हें बता दें कि हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और हमारे साथ बने हुए हैं हमारे म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। हमारे श्रोता अब दिल्ली से जुड़ रहे हैं गौतम कुमार। गौतम जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद। मेरा नाम गौतम सक्सेना है, गौतम कुमार नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, बट थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। धीरेन्द्र जी, SBI मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ मॉडल, ये मेरा SBI का जो SIP है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, 6.4% की तरफ ही जा रहा है, जबकि और मेरे जितने भी ब्लू चिप या फ्लेक्सी कैप या हाइब्रिड फंड हैं SBI से, उनकी परफॉर्मेंस अप्रोक्सीमेटली 25%, 30% अबव है। तो क्या ये ग्लोबल फंड ठीक है? अदरवाइज शुड आई स्विच टू सम अदर AMC फॉर ग्लोबल प्लान? और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, हमारे ये म्यूचुअल फंड्स, ग्लोबल फंड्स वगैरह में कुछ शेयर्स मेंशन होते हैं, कंपोजिशन होती है, तो वो क्लास A, क्लास C
या क्लास 3 या क्लास 3 लेवल शेयर्स क्या होते हैं। और एक क्वेश्चन छोटा सा जो कि एंकर के थ्रू ही है, बेसिकली एंकर से ही है। अभी एक न्यूज पड़ी थी कि हमारा एक्सपोर्ट निर्यात कम हुआ है डीजल एंड पेट्रोल का। जहां तक हमें पता है, हम सुनते आए हैं कि 80% हम इम्पोर्ट करते हैं, तो हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ है? धन्यवाद, यही क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच। आपकी ढेर सारे सवाल है, लेकिन जो सीधा सवाल है मैग्नम ग्लोबल, इसका प्रदर्शन कैसा है? ये डिसअपॉइंटिंग फंड रहा है थोड़े दिनों में, लेकिन कोई बहुत भारी डिसअपॉइंटमेंट का कारण नहीं है। और ये जो उतार चढ़ाव बाजार का है, ये अपने कैटेगरी और BSE 500 जो कि इसका बेंचमार्क है, या हम एक ब्रॉड बेंचमार्क से अगर इसकी तुलना करें तो ये बहुत निराशाजनक नहीं है। और ये मुझे पता नहीं है कि आपका ये निवेश कितने दिनों में 6.5% का रिटर्न आपको दे रहा है। इसलिए यह पिछले एक साल में इसका 6.25% है, जो कि इसके इंडेक्स से जरूर कम है, लेकिन इस फंड को समय दीजिए। ये एक ऐसा फंड है जिसका पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी अपनी लीडिंग कंपनियों में इसका पैसा लगा हुआ है, और वो कंपनियां महंगी थी, और इन कंपनियों का एक डिसअपॉइंटिंग फेज पिछला 1-1.5 साल रहा है। इसको 2-4 साल के नजरिए से अगर आप देखते हैं तो इसमें बने रहना चाहिए और लगातार निवेश जारी रखना चाहिए, तभी आप, और इस तरह के बाजार में पैसा लगाना मुनाफे का स्टेप होता है। आपने पूछा था कि ये क्लास ए और क्लास बी क्या होता है। विदेश में जो, हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में जिस भी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। सब आदमी, सब निवेशक को, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो विदेशी, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, विदेशी निवेशक हो, सबको, हम सब के राइट्स बिल्कुल बराबर होते हैं। हम सबको बराबर वोटिंग राइट्स होता है, डिविडेंड का राइट्स होता है, या हमारा जो एंटाइटलमेंट है उस कंपनी के लिए। विदेश में ऐसा संभव है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे शेयर इशू करती हैं जिसमें कि वोटिंग राइट्स अलग होता है, डिविडेंड का वोटिंग राइट्स किसी में रिस्ट्रिक्टेड होता है, किसी में नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैग्नम ग्लोबल में अल्फाबेट, जो कि गूगल की होल्डिंग कंपनी है, उसका क्लास ए शेयर्स है। क्लास ए और क्लास बी शेयर्स, उनका अलग अलग उनका फेस वैल्यू भी, उनका डिनोमिनेशन भी होता है। उसके अलावा उनके राइट्स अलग हो सकते हैं कि बहुत कंपनियों में, भारत में एक कंपनी है टाटा मोटर्स का के शेयर है, जिसमें कि डिविडेंड, ये वोटिंग राइट्स नहीं होने की वजह से वो वोटिंग राइट्स नहीं है, और लेकिन बाकी कंपनियों में वैसा नहीं है। तो अलग अलग इंटाइटमेंट आपको शेयर के क्लासेस उससे निर्धारित होते हैं। जी। As regards the diesel, we will read the story, Gautam, and you will get to know the details when it is read to you. Pankaj from Mumbai is with us. Pankaj, we welcome you. Hi, good evening. Thank you for your patience. No problem. I have 2 questions. First one is, how do you select the right mutual fund for you if you have a 3+ year horizon? And if you have the capacity to take risk. For what time frame? What time frame? Sorry. 3+ years. Okay. And secondly, is there an exit strategy in mutual funds as well? Like you have a stop loss in shares and equity. Even if you don't need the money, but is there an exit strategy of mutual funds? Thank you. 3 to 5 years time frame, I would suggest that, if you are broadly, this is a very precise time frame, which means that you are likely to need this money. And with that in mind, if it is for a non-negotiable goal, you definitely need that money. Then you should be investing in fixed income fund for 3 years time frame. And if it is for a little flexible, say for example, down payment of your house, and you are accumulating your money for that, then you should consider something which is which can potentially give you slightly marginally higher return without assuming great risk. Some conservative allocation funds which have 10 to 15% into equity and remaining into fixed income, those could be the right fund for something which is a negotiable goal. And about the exit strategy, the best exit strategy is choosing the right kind of fund and doing your SIP. And withdrawing your money well before you need the money. Assuming you need the money 5 years, 10 years from now, and you have done your investment,
gradually, accumulated a meaningful amount of money. All the amount that you need in the 8th year or 9th year or whatever part of the money, estimate that and start taking it out gradually. Don't depend on the last day for your investment. That's one. Second strategy is that, you chose a fund and that fund turned out to be not, disappointing. And you have to define what is disappointing. Because many a time, some fund might look disappointing, but it may not be so. If the overall market has fallen and so has the fund, you may be disappointed, but the fund may not be disappointing. And you have to withstand those declining phases to benefit from that. So with that in mind, compare it with benchmark, give it some time, and then, so if a fund turns bad, exit. Okay. So these are probably the two things which you should have. And the second part was whether there's an exit strategy. Sure, there is. Yeah, and the third thing is that, if you're investing for a goal, and if you have achieved your goal well before the, your estimated time frame, take the money out, feel happy, and go ahead and spend that money or invest that money, whatever you want to. Okay. Moving on, according to data with depositories, foreign portfolio investors put in a net amount of 49,254 crore rupees in Indian equities between August 1 and 26. This is the highest investment made by them so far in the current year. सरकार के विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाने के बाद डीजल के निर्यात में जुलाई माह में 11% की कमी आई है। पेट्रोल का निर्यात भी 4.5% कम हुआ है। सरकार ने 1 जुलाई को विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया था। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई माह में डीजल का निर्यात 24.5 लाख टन से गिरकर 21,80,000 टन हो गया। पेट्रोल का निर्यात 11,60,000 टन से कम होकर 11 लाख टन पर सिमट गया है। From Mumbai, we are joined in by Keshav. There is paucity of time, so जितना जल्दी हो सकते हैं सवाल पूछे प्लीज। केशव, अपना सवाल पूछे। क्या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जल्दी करें प्लीज। धीरेन्द्र सर हमेशा कहते हैं कि लमसम अमाउंट इक्विटी में नहीं डालनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ टूल है क्या सर कि हम लमसम डाल सकते हैं 20-25 लाख रुपया 5 साल के लिए? इस तरह की कोई रुकावट नहीं है कि आप नहीं, लेकिन आमतौर पे एक छोटा निवेशक जो कि निवेश करता है उसको बाजार का आदी नहीं है, बाजार के उतार चढ़ाव से वो परिचित नहीं है। उसमें अगर आप 25 लाख रुपए लगाते हैं और अगर 10% गिरावट बाजार में होता है अगले 2 महीने में, तो क्या आप बने रह पाएंगे? अगर आप बने रह पाएंगे तो जरूर लगाइए। धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ मार्केट मंथ के इस रविवार के एपिसोड में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ धन्यवाद। Thank you, Dhiren, for being with us. And before we close, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman says financial inclusion is a major step towards inclusive growth. Foreign funds pump in over 49,250 crore rupees in domestic equities so far in August. And countries' diesel exports decline 11% in July, while petrol shipment drops 4.5%. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बताती है कि सरकार विकास में हर वर्ग को शामिल कर रही है। विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में अब तक घरेलू बाजार में 49,250 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जुलाई महीने में देश में डीजल के निर्यात में 11% की कमी आई है, वहीं पेट्रोल का निर्यात भी 4.5% कम हुआ है। That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.